ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ବରଫ ତରଳିବା, କାଗଜରୁ ଖେଳନା କରିବା, ମହମ ତରଳିବା, ଚୁଟି କାଟିବା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କାଗଜକୁ ଜାଳି ଦେବା, ଫଳ ପାଚି ନଷ୍ଟ ହେବା ଓ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା। ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ବରଫ ତରଳିବା, କାଗଜରୁ ଖେଳନା କରିବା, ଚୁଟି କାଟିବା ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତିକି ଆମର ମହମ ତରଳିଯିବା, ଆଉ କାଗଜକୁ ଜାଳି ଦେବା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଫଳ ପାଚି ନଷ୍ଟ ହେବା, ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ, ଓ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ମୂଳ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ସେହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ସବୁବେଳେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୂଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଦୌ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁନଃ ସେଇ କଞ୍ଚା ପନିପରିବାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଫେରି ପାଇପାରିବା କି? ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି କାଗଜକୁ ଜାଳି ଦେବା, ଫଳ ପାଚିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା, ଏହିସବୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଦୌ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ, ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ, ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଜାତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହା ମୂଳ ପଦାର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଫେରି ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ବରଫ ତରଳିବା, ବରଫକୁ ପୁଣି ଆମର ପାଣିକୁ ପୁଣି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲେ ସେ ବରଫ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର ଆଣବିକ ସଂରଚନାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ମୂଳ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହା ମୂଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଦୌ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର ଆଣବିକ ସଂରଚନାରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦିନରୁ ରାତି ହେବା, ବର୍ଷା ହେବା, ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ଓ ଆମର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏସବୁ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆହୁରି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେମିତି କାଗଜକୁ ଜାଳି ଦେବା, ଫଳ ପାଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା, ରୂପା ପାଉଁଜି କଳା ପଡ଼ିଯିବା, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ସବୁ ସବୁଜିଆ କଲର୍ ପଡ଼ିଯିବା, ଆଉ ଆମର ମହମବତୀ ଜଳିବା। ଆଚ୍ଛା, ମନେ ରଖିବ, ମହମବତୀ ଜଳିବାଟା ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର ଆଣବିକ ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର ଆଣବିକ ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଏଣୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର ଆଣବିକ ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଣୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ତାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବା କିପରି? ନା, ଯଦି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ୟାସ୍ର ନିର୍ଗମନ, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ କେତୋଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ
जानिबा बा केतोटी रासायनिक प्रतिक्रिया को देखिबा। प्रथमटी हैला मैग्नेशियम सहित अम्लजानर रासायनिक प्रतिक्रिया। अम्लजानर उपस्थिति रे आमे मैग्नेशियम फिता को जालिले एक धला रंगर शिखा उज्जवल शिखा उत्पन्न हेबा सहित एक धला रंगर चूर्ण भी उत्पन्न हुए, ताहाकू मैग्नेशियम ऑक्साइड बोली कुहा जाए। से भली आउ एक समीकरण होची लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड रो मिश्रण रु सृष्टि हुए पोटासियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। से भली आउ एक रासायनिक समीकरण होची लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड रे जदि आमे किछि जिंक दाना पकई दबा तेबे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत हेबो। एबे आमे जानिबा रासायनिक समीकरण काहाको कहा जाए। रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़ी को क्षुद्र संक्षिप्त बा सांकेतिक रूप में लेखिबाकू रासायनिक समीकरण कहा जाए। रासायनिक समीकरण रे लेखिला बेले जहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया रे जेउ मौलिक गुड़िक रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग नहीं थाए ताहाकू प्रतिकारक बोली कहा जाए। यह रासायनिक प्रतिक्रिया रे प्रतिक्रियार प्रारंभ पदार्थ भाव में कार्य करे और जहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया परे फलस्वरूप सृष्टि होता है ताहाकू उत्पाद बोली कहा जाए। प्रतिकारक रो परिमाण प्रतिक्रिया पई लागुथिबा समय मुताबक धीरे धीरे कम बा तीव्र भाव में कमिबाकू लागे। यह प्रतिक्रिया शेष बेलू थाई पारे किंबा न थाई पारे। एहाकू रासायनिक समीकरण बाम पार्श्व रे लेखा जाए। मन रखिथिबो प्रतिकारक को रासायनिक समीकरण लेखिला बेले आमे ताको बाम पार्श्व रे लिखिथाउ। ठीक सही भली उत्पाद रो परिमाण समय मुताबक धीरे धीरे तीव्र भाव में बढ़िबाकू लागे। यह प्रतिक्रिया शेष बेलू थाए। एहाकू रासायनिक समीकरण लेखिला बेले दक्षिण पार्श्व रे लेखा जाए। जेमिति एठारे एक उदाहरण अछि मैग्नेशियम अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी सृष्टि होइछि मैग्नेशियम ऑक्साइड। यही रासायनिक प्रतिक्रियाटी रे आमे जतेबेले अम्लजानर उपस्थिति रे मैग्नेशियम फिता को जालाई थाउ सेतेबेले मैग्नेशियम फिताटी एक धला उज्जवल रंगर शिखा सहित जली थाए और सेथिरु एक धला रंगर चूर्ण बाहरी थाए। सेही चूर्ण को मैग्नेशियम ऑक्साइड बोली कहा जाए। यही रासायनिक प्रतिक्रियाटी रे मैग्नेशियम और ऑक्सीजन यही दुईटी मौलिक भाग नहीं सेथिपाई एमानंकु प्रतिकारक बोली कहा जाए और एहाकू रासायनिक समीकरण लेखिला बेले आमे ताकू बाम पार्श्व रे लेखा। मैग्नेशियम ऑक्साइड सेथिरु उत्पन्न होउची तेणु ताहाकू दक्षिण पार्श्व रे लेखा जाए और ताहा एक उत्पाद। एबे आमे रासायनिक समीकरण लेखिबार प्रणाली को जानिबा। समीकरण को लेखिला बेले प्रतिकारक गुड़िक बाम पार्श्व बा एलएचएस साइड रे उत्पाद गुड़िक दक्षिण पार्श्व बा आरएचएस साइड रे लेखा जाय थाए। प्रतिकारक और उत्पाद मध्य एक तीर चिन्ह दि जाए। रासायनिक समीकरण रे ताप चाप और उत्प्रेरक भली उपादान गुड़ी को यही तीर चिन्ह उपरे किंबा तले दर्शा जाय थाए। तीरटी बामरू डाहाण को दि जाय थाए। यह प्रतिक्रियार दीर्घ दिगटा को निर्देश करे। रासायनिक प्रतिक्रिया रे एकाधिक प्रतिकारक थिले सेगुड़िक मध्य युक्त चिन्ह दि जाई लेखा जाय थाए। सेही भली एकाधिक उत्पाद थिले सेगुड़िक मध्य युक्त चिन्ह दि जाई लेखा जाए। समीकरण को अधिक व्यवहार उपयोगी करबा पई एथिरे प्रतिकारक और उत्पाद गुड़िकर सांकेतिक रूप को व्यवहार करा जाय थाए। संतुलित रासायनिक समीकरण रसायन विज्ञानर समस्त नियम को अनुसरण करिथाए। एणु सूचकीय रासायनिक समीकरण बदल रे संतुलित समीकरण प्रति ध्यान देवा आवश्यक बा जोटा को कहा जाए समतुल रासायनिक समीकरण। अच्छा मन रखिबो सबु बेले गोटे रासायनिक समीकरण रे प्रतिकारक गुड़ी को बाम पार्श्व रे और उत्पाद गुड़ी को दक्षिण पार्श्व रे लेखा जाए और बाम और सेमानक मध्य रे एक तीर चिन्ह दिया जाय थाए। एबे आमे सूचकीय रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण बा समतुल रासायनिक समीकरण विषय अधिक जानिबा। रासायनिक समीकरण पदार्थर रासायनिक संयोग उपर निर्भरशील। एणु रासायनिक संयोगीकरण नियम आधार रे रासायनिक समीकरण गुड़ी को निम्नोक्त भाग में विभक्त करा जायछि। जेपरिक गोटे होची सूचकीय रासायनिक समीकरण आउ एक हला समतुल रासायनिक समीकरण। सूचकीय रासायनिक समीकरण कौन आमे प्रथम जानिबा। अच्छा एथरे उदाहरण देइछि Mg+O2 सृष्टि हला MgO।
ଏହି ସମୀକରଣଟିରେ ତୀର ଚିହ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା। mgର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ଼୍ରେ 1 ଓ ଉତ୍ପାଦ ସାଇଡ଼୍ରେ 1, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ଼୍ରେ 2 ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦ ସାଇଡ଼୍ରେ 1 ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବା ଏହି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟି କେବଳ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ବା ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରତିକାରକରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସମାନ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ସମାନ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟିକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଉଭୟ ପଟରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉଭୟ ପଟରେ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହାର ଉଭୟ ପଟରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକାର ପଟରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ସଂଖ୍ୟା 2 ଥିଲାବେଳେ ଉତ୍ପାଦ ସାଇଡ଼୍ରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 2 ଅଛି। ସେହିପରି ଅକ୍ସିଜେନର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିକାରକ ପଟରେ 2 ଥିଲାବେଳେ ଉତ୍ପାଦ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନର ସଂଖ୍ୟା 2 ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବା ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବା ବାଲାନ୍ସଡ ଇକ୍ୱେସନ୍। ମନେ ରଖିବ, ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଏକ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରୁହେ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଉଭୟ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହାର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ନଥାଏ। ଏହା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ଉଭୟ ପଟରେ ପରମାଣୁର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥାଏ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିଗ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିମାଣ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଓ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଉଭୟ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହାର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ଥାଏ। ଏହା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ମାନିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଉଭୟ ପଟରେ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ଉଭୟ ପଟରେ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିବା। ପ୍ରଥମ ଏହାର 7ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟି ଅଛି Fe + S2 ସୃଷ୍ଟି ହେଲା Fe3O4 + S2। ଏହି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତ ଚାରିପଟରେ ଆମେ ବାକ୍ସ ଅଙ୍କନ କରିବା। ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କିଛି କରିବନି। ଯାହା କରିବ ବାକ୍ସର ଲେଫ୍ଟ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ତାର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ଯେତେଟା ମୌଳିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଉତ୍ପାଦ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ତାଲିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେମିତିକି Fe ପ୍ରତିକାରକ ପଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଉତ୍ପାଦ ପଟରେ 3ଟା ଅଛି। ସେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରତିକାରକ ପଟରେ 2ଟା ଅଛି, ଉତ୍ପାଦ ପଟରେ 2ଟି ଅଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରତିକାରକ ପଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଉତ୍ପାଦ ପଟରେ 4ଟି ଅଛି। ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଯୌଗିକରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି କ'ଣ Fe3O4, Fe 3ଟା O4 ମାନେ 4ଟା ଅଛି, ତ ଟୋଟାଲି 7ଟା ପରମାଣୁ ଏଠାରେ ଅଛି। ସେହି ଯୌଗିକଟାର ପୁଣି ଦେଖିବା କେଉଁ ପରମୌଳିକଟା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଅଛି। ଏଠି Fe3O4ରେ O4ଟା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସମତୁଲ କରିବା। ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସମତୁଲ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା 3rd ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସମତୁଲ କରିବା, ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା ଅଛି? ଲେଫ୍ଟ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ଅଛି, ବା ଆମର ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଉତ୍ପାଦ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ 4ଟା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ S2 ଥିଲା ତା ସାଇଡ଼୍ରେ 4 ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ 4ଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଏପଟେ 4ଟା ହେଇଗଲା, ସେପଟରେ ଅକ୍ସିଜେନ 4ଟା ଅଛି। ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ପଟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଇଗଲା।
बर्तमान तापरे 4 नंबर स्टेप रे आमे प्रथमे देखिबा हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ एफ दीटा को रहिले जे कोनसी गुटे को आमे चूज करिबा आमे एठी हाइड्रोजन को चूज करिकी तार संख्या को समतुल करिबा लेफ्ट साइड रे हाइड्रोजन रो संख्या केतरा अछि ना हाइड्रोजन 4 दुने 8टा हो गलानी किंतु राइट साइड रे हाइड्रोजन 2टा अछि तो सेत पे एपट साइड रे हमको उत्पाद साइड रे हाइड्रोजन रो संख्या को 4 करबा को पड़िबो हम 4 कर देले 4 8 करबा को पड़िबो त हमको 4 गुणीबा को हेबो 4 दुने 8 हे जिबा तापर नेक्स्ट 5 नंबर स्टेप रे हमें कोन करबा ना एफ को समतुल करबा एफ लेफ्ट पट साइड रे एफ गोटे अछि बा प्रतिकारक साइड रे एफ गोटे अछि उत्पाद साइड रे एफ 3टा अछि तो सेत पे हमें प्रतिकारक साइड रे 3 गुणी देले एफ पाखरे 3 गुणी देले तो हमर 3f प्लस 4s2 सृष्टि है Fe3O4 प्लस 4s2 यही समीकरणटा सृष्टि है। बर्तमान समीकरण को जांच करवा देखा उभय पट साइड रे प्रत्येक मौलिकर संख्या सामान अच्छी कि नहीं तापर 7 नंबर स्टेप रे आमे कौन करवा ना यही समीकरण प्रत्येक संकेत पाखरे सेमानंकर भौतिक अवस्था गुड़ी को उल्लेख करवा एपरिकी एफी सहित जड़े जितेबाला जल रासायनिक प्रतिक्रिया करिछि सेतेबाला एफी को अवस्था थिला और जल को अवस्था थिला ना एफी पाखरे आमे एस लिखिचंती तेणु एफी कठिन अवस्था थिला और जल सेतेबाला गैसीय अवस्था रासायनिक प्रतिक्रिया करितिला एफी सहित और जो Fe3O4 सृष्टि हैला ता ब्रैकेट रे आमे एस लिखिचंती से कठिन अवस्था सृष्टि हैला और हाइड्रोजन टा गैसीय अवस्था सृष्टि हैला सेति पई ता ब्रैकेट रे आमे जी लिखिचंती मने रखिबो ई भौतिक अवस्था को सूचित करिबा पई गैसीय अवस्था पई स्मॉल जी ब्रैकेट रे लिखिबो संकेत साइड रे तरल अवस्था पई एल लिखिबो आ कठिन अवस्था पई एस को लिखिबो ब्रैकेट रे और जलीय द्रवण पई एक्वस बा ए क्यू को ब्रैकेट रे लिखिबो कि जितेबाला रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप मन रखिबो जितेबाला रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप चाप इत्यादि उत्प्रेरक को विषय सूचना देबाकू पड़े सेतेबाला ताकू तीर चिन्ह उपरे जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे जो प्रतिकारक उत्पाद मझिरे जो तीर चिन्हटे थाए तारी उपरे सेगुड़ी को दर्शा जाई थाए समीकरण समतुल करिवार एही प्रणाली को हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाए बा ताकू परख निरेख पद्धति बोली मध्य कहा जाए हीट एंड ट्रायल मेथड बा ताकू परख निरख पद्धति कहा जाए। एबे आमे रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकार भेद विषय जानिबा आणविक संरचना आधार रे रासायनिक प्रतिक्रिया 4 भाग रे विभक्त होइछि प्रथमटी हला संश्लेषण प्रतिक्रिया विघटन प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया और द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया ठीक से भली शक्तिर निर्गमन आधार रे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया और ताप शोषी प्रतिक्रिया शक्तिर निर्गमन और विनियोग आधार रे ताप उत्पादी आ गोटे हला ताप शोषी आ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण आधार रे गोटे हला जार 2 भाग रे विभक्त गोटे हला जारण प्रतिक्रिया आ गोटे हला विजारण प्रतिक्रिया ये सबू रासायनिक प्रतिक्रिया विषय रे आमे कोटी कोटी करी सबू रासायनिक प्रतिक्रिया को आलोचना करिया। आणविक संरचना आधार रे रासायनिक प्रतिक्रिया केते प्रकार अछि संश्लेषण प्रतिक्रिया विघटन प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया और द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया। एबे आमे प्रथमे जानिबा संश्लेषण प्रतिक्रिया विषय रे जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे 2 बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त हुई एकमात्र उत्पाद सृष्टि हुए सही रासायनिक प्रतिक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया कहा जाए। एठारे उदाहरण अछि CaO + S2 सृष्टि हैला CaOH रो होल्टू एठी दुई बा अधिक प्रतिकारक माने CaO गुटे S2 गुटे दीटा प्रतिकारक मिसिकी गुटिए उपादान बा गुटिए उत्पाद सृष्टि हैला जोटा कि हैला CaOH रो होल्टू आ गुटे सेमती कोइलार दहन जेमती कार्बन प्लस ऑक्सीजन सृष्टि हैला CO2। वर्तमान आमे जानिबा विघटन प्रतिक्रिया विषय जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गुटिए मात्र प्रतिकारक विघटित हुई किछि सरलतर उत्पाद सृष्टि हुए से भली प्रतिक्रिया को विघटन प्रतिक्रिया कहा जाए। गुटिए मात्र प्रतिकारक विघटित हुई कि सरलतर उत्पाद सृष्टि हो जेपरिक एबिटा गुटे प्रतिकारक से भांगी कि A + B हैला दीटा उत्पाद सृष्टि हैला। अच्छा ये जो विघटन प्रतिक्रियाटा ये 3 प्रकार विघटन अच्छी 3 प्रकार विघटन प्रतिक्रिया अच्छी गोटे है तापीय विघटन जे कि ताप प्रयोग द्वारा जो विघटनटा होता है सी है तापीय विघटन तार गोटे उदाहरण है CaCO3 बा चून पत्थर को आम ताप प्रयोग कले CaO + CO2 गैस सृष्टि होता है। अच्छा आउ एक प्रकार विघटन प्रतिक्रिया होची वैद्युतिक विघटन जहाँकि विद्युत शक्ति प्रयोग द्वारा होता है जेपरिक जल आम विद्युत विश्लेषण करें आम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाइबा। अच्छा आउ गोटे प्रकार विघटन होची
आलोक शक्ति प्रयोग द्वारा जो विघटन ताकू आलौकिक विघटन बोली कहा जाए से प्रतिक्रिया जमती AgCl सृष्टि है सूर्यालोक उपस्थित जिते बड़े आम AgCl को रखी दियंती सेतेबेले Ag+Cl2 सृष्टि हुए माने तीन टा जाक तापीय विघटन वैद्युतिक विघटन और आलौकिक विघटन बा आलोक शक्ति प्रयोग विघटन द्वारा तीन टा जाक विघटन रे गुटे प्रतिकारक भांगी अनेक गुड़िया उत्पाद सृष्टि होची। तेणु जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गुटे मात्र प्रतिकारक विघटित हुई किछि सरलतर उत्पाद सृष्टि हुए से भली प्रतिक्रिया गुड़ी को विघटन प्रतिक्रिया कहा जाए। आम जाना शक्तिर निर्गमन बा विनियोग आधार रे जो रासायनिक प्रतिक्रिया दी प्रकार गोटे है ताप उत्पादी प्रतिक्रिया आ गोटे है ताप शोषी प्रतिक्रिया। प्रथमे जाना आम ताप उत्पादी प्रतिक्रिया विषय जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप शक्ति उत्पन्न हुए ताहाकू ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कहा जाए। यह साधारणतः संश्लेषण प्रतिक्रिया रे देखा जाए। यार उत्पाद तुलन में प्रतिकारक शक्ति धारण क्षमता अधिक तेणु उत्पाद रे शक्तिजात हुए। यह द्वारा प्रतिक्रिया घटुवा परिवेशर तापमात्रा वृद्धि पाए। एठारे केवल ताप शक्ति रूप ही ताप शक्ति रूप ही शक्ति उत्पादित होता है। मन रखिबो ताप उत्पादी प्रतिक्रिया माने जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे तापटा उत्पन्न होची ताकू कहा जाए ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया। उदाहरण है प्राकृतिक गैस दहन काठ जलिबा खत प्रस्तुति और मानवर श्वसन प्रक्रिया इत्यादि ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। एबे जानिबा आमे ताप शोषी प्रतिक्रिया विषय जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप शक्ति शोषित हुए ताहाकू ताप शोषी प्रतिक्रिया कहा जाए। यह साधारणतः विघटन प्रतिक्रिया रे देखा जाए। एठारे प्रतिकारक तुलन में उत्पादर शक्ति धारण क्षमता अधिक तेणु प्रतिकारक रे शक्ति नियोजित होता है। यह द्वारा प्रतिक्रिया रे संश्लिष्ट रासायनिक पदार्थ गुड़िकर तापमात्रा वृद्धि पाए। एठारे शोषित ताप शक्ति अन्य रूप में व्यवहृत हो पारे जेपरिक आलोक शक्ति विद्युत शक्ति इत्यादि। ये जो ताप शोषी प्रतिक्रिया रे कौन हम ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया ताप शक्तिटा को शोषित करला परे जाकि तार रासायनिक प्रतिक्रियाटा होगी नुआ उत्पाद सृष्टि होइतिबो ताकू ही कहा जाए ताप शोषी प्रतिक्रिया। तार उदाहरण है बरफ तरलिबा जलर बाष्पीकरण हवा आ गोटे है आलोक शोषण। यही तीन प्रकार प्रतिक्रिया है ताप शोषी प्रतिक्रिया। तो बर्तमान जो शक्तिर निर्गमन बा शक्तिर विनियोग आधार रासायनिक प्रतिक्रिया दीटा आम जानीगले। एबे जानिबा विस्थापन प्रतिक्रिया विषय जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे मौलिक कौन एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करे से ही रासायनिक प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाए। उदाहरण एमती कि A+BC सृष्टि है AC+B। एठारे ए मौलिकटी कौन कला BC यौगिक ठारू B को अलगा कर देकी तार स्थान नहीं कि AC+B सृष्टि करदेला। तो यही भाया रासायनिक प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाए जेठारे गोटे मौलिक कौन एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करिथिबो। आ मौलिक मानकर प्रतिक्रियाशीलतार अनुकरण को निर्धारण करिबारे एही विस्थापन प्रतिक्रिया आवश्यक होता है। आ धातु निष्कासन समय विस्थापन प्रतिक्रिया मध्य आवश्यक होता है। यार गोटे उदाहरण है Fe+CuSO4 सृष्टि है FeSO4 प्लस Cu बा कपर जितेबले कपर सल्फेट द्रवण रे सहित एफिटा बा लुहाटा रासायनिक प्रतिक्रिया करेबले FeSO4 बा आयरन सल्फेट सहित आउ कपर सृष्टि हम। एठारे कौन कला ना एफिटा कपर सल्फेट द्रवण रु कपर को अलगा करदेला माने गोटे मौलिक एफी से अन्य एक यौगिक माने कौन CuSO4 ठारू Cu को कपर को स्थानांतरण करदेला। तो यही भाया रासायनिक प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया बोली कहा जाए। एबे आमे जानिबा द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया विषय जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे प्रतिकारक दुईटी मध्य आयनर विनिमय होई नूतन पदार्थ सृष्टि हुए से ही रासायनिक प्रतिक्रिया को द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाए। उदाहरण AB+CD सृष्टि है AC+BD जमिति कि AB थिला ए पाखरे CD AB सहित एबी रो एटा आसिक सी सहित लगिगला और बीटा आसिक डी सहित लगिगला। तेणु एठारे कौन है प्रतिकारक दुईटी मध्य आयनर विनिमय घटिला देकी नूतन पदार्थ सृष्टि है। यही भाया रासायनिक प्रतिक्रिया को द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाए।
तार गोटे उदाहरण है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड सृष्टि है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। एठारे कौन हुए ना जो बेरियम सल्फेट्र गोटे अवक्षेप सृष्टि हुए। अच्छा तेणु द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया को गोटे अन्य नाम अच्छी ताकू अवक्षेपण प्रतिक्रिया बोली कहा जाए। एबे आमे जारण प्रतिक्रिया विषय जानिबा। रासायनिक प्रतिक्रिया समय जदि प्रतिक्रिया सहित जड़ित पदार्थ गुड़िक अम्लजान लाभ करती बा ग्रहण करती किंबा हाइड्रोजेन हराई थांती से भली प्रतिक्रिया को जारण प्रतिक्रिया कहा जाए। बा साधारण भाव में आम कहू गले जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे अम्लजान जोग होता है और हाइड्रोजेन विजोग होता है से भली रासायनिक प्रतिक्रिया को जारण प्रतिक्रिया बोली कहा जाए। तार उदाहरण है Cu+O2 सृष्टि है Cu माने एठी कपरटा ऑक्सीजन लाभ करिकी CuO हैला बा कपर ऑक्साइड सृष्टि हैला। हाइड्रोजेन विजोगर गोटे उदाहरण देखले आम बुझीपर जमीक कि हाइड्रोजेन विजोगर जारण प्रतिक्रिया होता है जमीक कि CH3OH भांगिकी सृष्टि है CH2O+H2 ठारे हाइड्रोजेन विजोग हो जारण प्रतिक्रिया होइछि। एबे आमे जानिबा विजारण प्रतिक्रिया विषय। रासायनिक प्रतिक्रिया समय जदि प्रतिक्रिया सहित जड़ित पदार्थ गुड़िक हाइड्रोजेन लाभ करती बा हाइड्रोजेन ग्रहण करती बा अम्लजान को हरई थांती से भली प्रतिक्रिया को विजारण प्रतिक्रिया कहा जाए। मन रखिब हाइड्रोजेन जोग बा अम्लजान विजोग यार उल्टाटा होता जारण रे अम्लजान जोग हाइड्रोजेन विजोग ताको कहते जारण किंतु विजारण कौन ना हाइड्रोजेन जोग बा हाइड्रोजेन लाभ करती बा अम्लजान विजोग अम्लजान हरई थाए से भाया रासायनिक प्रतिक्रिया को विजारण प्रतिक्रिया कहा जाए। गोटे गोटे उदाहरण है H2+I2 सृष्टि है 2HI। आ गोटे उदाहरण है H2+Cl2 सृष्टि है 2HCl। ये दुईटी जगार हाइड्रोजेन जोग बा हाइड्रोजेन ग्रहण करी रासायनिक प्रतिक्रिया होती तेणु यहाँ विजारण प्रतिक्रिया कहा जाए। अच्छा अम्लजान परित्याग को लेकिन अम्लजान विजोगर जो विजारण प्रतिक्रिया होती तार उदाहरण कौन ना ZnO+C तो Zn पाखु ऑक्सीजनटा बाहरी गला बाहर की जाकि कार्बन पाखे लगिगला तो ये विजारण प्रतिक्रिया है ना ZnO+C सृष्टि है Zn+CO। और जारण विजारण प्रतिक्रिया समय जो पदार्थ अम्लजान जोग कला ताको आमे जारित पदार्थ बोली कहबा आउ जी ताको जारित पदार्थ बोली कह जाए और जेठारे अम्लजान विजोग है बा हाइड्रोजेन ग्रहण है से भाया प्रतिक्रिया को से पदार्थ को जोटी विजारण प्रतिक्रिया होती जो जी ऑक्सीजन को छाड़ी ताकू आमे विजारित पदार्थ बोली कहबा। एबे आमे जारण विजारण प्रतिक्रिया विषय जानिबा। जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे उभय जारण और विजारण होता है सही रासायनिक प्रतिक्रिया को जारण विजारण प्रतिक्रिया कहा जाए। जेपरिक गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया होची CuO+H2 सृष्टि है Cu+H2 एठारे कपर ऑक्साइड CuO टा ऑक्सीजन को त्याग कला ऑक्सीजन को त्याग करिकी केवल कपर हो गला ऑक्सीजन त्याग होइची माने की प्रतिक्रिया होइची विजारण प्रतिक्रिया होइची। सही रासायनिक प्रतिक्रियाटी रे मध्य हाइड्रोजेन टे ऑक्सीजन को लाभ करिकी जारित होइची। तो एई भली रासायनिक प्रतिक्रिया जेउठारे एका समय जारण और विजारण होता है से भली रासायनिक प्रतिक्रिया को जारण विजारण प्रतिक्रिया बोली कहा जाए। आम दैनंदिन जीवन में जारण प्रतिक्रिया विषय पढ़ा सेटा आम प्रथम पढ़ा संक्षारण विषय तापर पढ़ा सढ़ा अवस्था विषय। संक्षारणटा कौन ना धातु ताकू घेरी रही उपादान किए किए ना जलीय बाष्प अम्ल इत्यादि सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी धीरे धीरे क्षय होगाकू लगी थाए ताकू संक्षारण बा क्रमक्षय बोली कहा जाए। यह द्वारा मोटर गाड़ी पोल लुहाबाड़ जहाज
ଓ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ବस्तु विशेषकर लौह निर्मित वस्तुगुड़िक अधिक क्षय होता। तार गोटे उदाहरण है लुहा उपरे जो कलंकी लगी लोहित बादामी रंगर आस्तरण ताहा गोटे संख्यारणर उदाहरण। आ गोटे रूपा उपरे जो कला रंगर आस्तरण सी भी गोटे संख्यारणर उदाहरण। से सब कौन पाई होईची ना से धातुटा अम्ल और जलीय बाष्प सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करने द्वारा तार क्रम क्षय होता है धीरे धीरे से क्षय हो जाए। सही प्रतिक्रिया को आमे संख्यारण बोली कहती ताहाकू आमे संख्यारण बा क्रमक्षय बोली कही था। जेपरिक तंबा उपरे सबुज रंगर आस्तरण माड़ी जावा। तेबे सढ़ा अवस्था कौन ना बहुत दिन धरी रही जाइथिबा खाद्य पदार्थ वायुरे थिबा अम्लजान संस्पर्श रे आसी जारित हुई एक प्रकारर रहणिया गंध सृष्टि करे। एहाकू सढ़ा अवस्था कहुए। एहा द्वारा खाद्यर उभय स्वाद और बास्नारे परिवर्तन आसे। यह मुख्यतः तेल और चर्बी थिबा खाद्य विशेष भाव में देखा जाए। तेणु ये जो संख्यार जो आम सढ़ा अवस्थाटाकू जो खाद्यटा जो जारित हो जाइए नष्ट हो जाऊँगी ताकू रोकवाई कौन व्यवहार हुए ना ताकू जो खाद्यर सढ़ा अवस्थाटाकू प्रतिरोध करने ताकू प्रत्येक खाद्य को वायुरुद्धि पात्र रखा दरकार आउ से प्रतिजारक व्यवहार करने आवश्यक होता है। वायुरुद्धि पात्र रे खाद्य रखिले जारण प्रतिक्रिया मंथर होता है एवं खाद्य पदार्थ रे प्रतिजारकर आवश्यकता अनुसार व्यवहार द्वारा यह बहुदिन संरक्षण करा जाई रखा जाई थाए। अच्छा से जो सढ़ा अवस्था बा से जो जारण खाद्यटा जो जारित हो जाए से आम प्रतिजारक व्यवहार करिया। से भाई आम जो चिप्स खोल खाऊ चिप्स खाऊँ जो से चिप्स रे नाइट्रोजेन गैस को प्रतिजारक भाव में व्यवहार करा जाई थाए।